اس کی ڈیٹ مس ہو چکی تھی، تو وہ کافی پریشان ہوئی کیونکہ جب سے اسے ماہواری سٹارٹ ہوئی تھی کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی، اسے لگا کوئی مسئلہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اس کی ڈیٹ مس ہو چکی ہے، مگر ڈاکٹر کے چیک کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے، اس کی طرف دیکھا اور اس کو خوشی سے کہا، آپ کو مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ تو اسے یوں لگا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو اور ایک بھاری آسمان اس کے سر پر گر گیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، مگر ڈاکٹر نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج تک میں نے جس کو بھی چیک کیا ہے کسی کو بھی اس بارے میں غلط فہمی نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ اداس کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا یہ بچہ نہیں چاہتی آپ؟ تو اس نے خاموشی اختیار کر لی اور اپنی ٹیبل سے رپورٹس اٹھائیں۔ دروازہ کھول کر ہسپتال کے کوریڈور میں گمسم سی رپورٹس کو سینے سے لگائے چلنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد عائشہ اپنے ہاسٹل کے کمرے میں پہنچی تو اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر اس کی دوست دعا اس سے پوچھنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ تو عائشہ نے دعا کے سامنے اپنے رپورٹس کو رکھ دیا۔ دعا بھی یہ رپورٹس پڑھ کر حیرت زدہ ہوئی، اس کو بھی شاید غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ تم کسی اور لیبارٹری سے ٹیسٹ کرواؤ، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو۔ وہ دونوں اسی وقت مختلف لیبارٹریز میں گئیں اور عائشہ کو چیک اپ کروایا۔ تینوں رپورٹس بالکل سیم تھی، رپورٹس پازیٹیو تھیں اور عائشہ واقعی پریگننٹ تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر اس سے یہ پریگننٹ کرنے والا شخص تھا کون۔ وہ رپورٹس ہاتھوں میں تھامے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ پھر فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ گلے سے آواز نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اگلے 2 ہفتے تک کمرے میں بند رہی تھی۔ دعا آتی اور دروازے پر دستک دیتی لیکن عائشہ کوئی جواب نہ دیتی۔ وہ اسے دروازے کے باہر سے کھانا بھی دیتی جو پڑا پڑا ہی خراب ہو جاتا تھا۔ بطول رات کو اٹھتی تھی اور واش روم میں پانی پیتی تھی، لیکن بس اتنا کافی نہیں تھا جینے کے لیے۔ خوف یہ نہیں تھا کہ کیا ہوا، خوف یہ تھا کہ کوئی جانے گا تو کیا سوچے گا، ابا کو پتہ چلا تو کیا ہوگا، حویلی میں خبر پہنچی تو کیا ہوگا۔ وہ لڑکی جس نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، وہ آج اس حال میں تھی اور اسے خود بھی نہیں پتا تھا کیوں۔ چوتھی رات وہ بستر پر لیٹی ہاسٹل کی چھت کے کمرے کو گھور رہی تھی، یہ دروازے کے نیچے سے کچھ سرکنے کی آواز آئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ہاسٹل میں سب سو چکے تھے۔ آہستہ سے اٹھی، دروازے کے قریب گئی۔ دروازے کے باہر ایک لائٹ بلو کلر کا کاغذ موجود تھا جس پر لکھا تھا مائی سویٹ ہارٹ، کانگریچولیشن، ہم 2 سے 3 ہونے والے ہیں۔ عائشہ یہ پڑھ کر حیران ہو گئی، یہ کون تھا جو اس بچے کے بارے میں جانتا تھا اور جس نے یہ خط بھیجا ہے؟ یقیناً یہی خط لکھنے والا میرے بچے کا باپ ہے، لیکن یہ خط رکھا گیا کیسے؟ کوئی آواز نہیں آئی، کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی نہیں دی گئی۔ وہ حیرت زدہ اس خط کو ہاتھوں میں تھامے کافی دیر بیٹھی، نم آنکھوں سے اس خط کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہ سب سوچتی وہ اٹھی، اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور دعا کے پاس چلی گئی اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں اس نے بتایا اور کہا کہ اب یہ بچہ کسی صورت اس کے پیٹ میں نہیں پڑے گا، وہ کل صبح ہی اسے اپنے وجود سے ختم کر دے گی۔ اس نے صبح دعا کو اپنے ساتھ لیا اور شہر کے ایک بڑے کلینک کے باہر جا پہنچے، لیکن ابھی وہ کلینک کے اندر نہیں گئی تھی کہ ایک اس کے پیچھے 2 بڑی سیاہ گاڑیاں آ کر رکی اور اس میں سے نکلنے والے لوگ مسلسل اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک گاڑی میں سے نہایت خوبصورت نوجوان نکلا تھا جسے دیکھتے نظریں وہیں جم جاتی تھیں۔ عائشہ کی نظر پر اس پر جم گئی تھی۔ اس نے اپنی کلائی پر گہرے رنگ کی گھڑی، انگلی میں انگوٹھی، بال پیچھے کی طرف سیٹ کیے تھے۔ چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی جو اسے اور خطرناک بنا رہی تھی، لیکن سب سے پہلے جو چیز نظر آئی تھی وہ اس کی آنکھیں تھی، گہری، سرد، بالکل پتھر جیسی۔ آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ جذبہ، بس خاموشی اختیار تھی، جو بتاتا تھا کہ شخص جو چاہے کر سکتا ہے اور کوئی روک نہیں سکتا۔ سنا ہے بطول کا بازو اور مضبوطی سے پکڑا، عائشہ یہ لوگ ادھر کیوں آ رہے ہیں؟ لیکن وہ شخص ادھر ہی آ رہا تھا، سیدھا، بغیر رکے، بغیر ادھر ادھر دیکھے۔
जैसे इससे पहले से पता हो कि वो यहाँ होगी। सना ने कदम पीछे लिए। आयशा, मुझे डर लग रहा है। ये कोई आम आदमी नहीं है। आयशा के पाँव जमीन में गड़ गए थे। भागना चाहती थी लेकिन टांगों ने साथ नहीं दिया था। वो शख्स करीब आया और उसके सामने रुक गया और आयशा को उसकी खुशबू महसूस हुई। महंगी, भारी और कुछ ऐसी जो दिमाग में उतर जाती है। जवार शाह ने आयशा को ऊपर से नीचे तक देखा, जिसे उसने देखने का पूरा हक हो, जिसकी आंखें आयशा की आंखों पर ठहर गई हों। गाड़ी में बैठो, बस यही दो अल्फाज थे। आवाज धीमी थी लेकिन उस पे वो वजन था जो हुक्म में होता है। सना के मुंह से बेख्तियार निकला। दुआ और आयशा उस लम्हे समझ गए कि ये वही शख्स है जिसने वो खत लिखा था। क्लिनिक की सीढ़ियों पर खड़ी आयशा के कदमों से जैसे जमीन निकल रही थी। सामने खड़ी बड़ी सी काली गाड़ी और उससे उतरता जवार शाह, जिसके नाम का खौफ बड़े शहर में फैला हुआ था, आज एक अटल दीवार बनकर उसका रास्ता रोके खड़ा था। जवार शाह ने गहरी और तीखी नजर आयशा के सफेद पड़ते चेहरे पर डाली। उसकी आंखों में अजीब सी फातिहाना चमक थी, जिसने आयशा के अंदर डर की एक सर्द लहर दौड़ा दी थी। उसने कुछ कहना चाहा, पर आयशा ने बड़ी मजबूती से उसका बाजू पकड़ा और उससे गाड़ी की पिछली सीट की तरफ धकेल दिया। आयशा के एहतजाजी अल्फाज उसके हलक में दम तोड़ गए थे, क्योंकि जवाहर शाह के लम्स में एक ऐसी हाकमियत थी जिसने उसे लम्हों में बेबस कर दिया था। गाड़ी का दरवाजा एक भारी और खौफनाक आवाज के साथ बंद हुआ तो आयशा को लगा जिससे उसकी जिंदगी की केच शुरू हो चुकी है। जवाहर शाह उसके बिल्कुल बराबर में आ बैठा और गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी, मगर अंदर की खामोशी ही होलनाक तूफान का पता दे रही थी। अचानक जवाहर शाह का चौड़ा और गर्म हाथ हरकत में आया और निहायत बेबाकी से आयशा के पेट पर आकर ठहर गया। आयशा का सांस जैसे सीने में ही मुंजमद हो गया था और उसने घबराकर पीछे होना चाहा, मगर जवाहर शाह के हाथ में एक ऐसी फौलादी ताकत थी जो उसे हिलने तक नहीं दे रही थी। जवाहर शाह का हाथ वहीं जमा रहा, जैसे वो इस नन्ही सी जान को महसूस कर रहा हो जो अभी इस दुनिया के हंगामों से बेखबर थी। उसके लम्स की तपिश आयशा के पूरे वजूद में किसी जहर की तरह उतरने लगी। उसने अपना चेहरा झुकाकर आयशा के कान के करीब किया तो उसकी गर्म सांसों की तपिश आयशा की गर्दन पर किसी शोले की तरह लग रही थी। वो निहायत धीमी और बारी आवाज में उसके कान में जहर खोलने लगा कि जिसे तुम एक मामूली हादसा समझकर मिटाने लगी थी। आयशा, वो मेरे खून की अमानत है, मेरी काली सल्तनत का एक लौता वारिस था। उसके हाथ का दबाव पेट पर जरा सा बढ़ा, जैसे वो इस पर अपनी मलकियत की मोहर जब्त कर रहा हो। आयशा की आंखों से गर्म आंसू टपक कर जवार शाह के हाथ पर गिरे, मगर इस पत्थर दिल इंसान के चेहरे पर रहम का कोई निशान नहीं था। वो सफाकी से दोबारा बोला कि बच्चा इस दुनिया में कदम रखेगा और बिल्कुल मेरी तरह लोगों के मुकद्दर के फैसले करेगा, और तुम इस बच्चे की मुहाफिज बनोगी, क्योंकि अगर उससे जरा सी भी तकलीफ पहुंची तो याद रखना आयशा कि तुम्हारे वजूद का एक एक जरा मेरे हिसाब की इज्जत में होगा। मैं तुम्हें ना जीने दूंगा और ना ही मरने का हक दूंगा। आयशा ने अपने लरसते हाथों से जवार का हाथ हटाने की एक आखिरी और नाकाम कोशिश की और उसका पूरा जिस्म किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था और उसकी आवाज शिद्दत कर्ब से डूब गई थी जब उसने बेबसी से पूछा कि यह सब कैसे हो सकता है। मैंने तो आज से पहले आपका नाम तक नहीं सुना और ना ही कभी आपको देखा है। आप कौन हैं और क्यों मेरी हस्ती बसती जिंदगी को जहन्नुम बना रहे हैं? सवार शाह के लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना हाथ आयशा के पेट से हटाया और उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों की सख्त गिरफ्त में लेकर उसका चेहरा अपने बिल्कुल सामने कर लिया। उसकी खौफजदा आंखों में अपनी हाकमियत उतारते हुए उसने जताया कि तुमने मुझे नहीं देखा आयशा, मगर मेरी नज़र तुम पर तब से है जब तुमने ठीक से होश भी नहीं संभालना था। मैं तुम्हारा वो मासी हूँ जिसे तुम जानती नहीं, और वो मुस्तकबिल बन जाऊंगा जिसे तुम चाहकर भी तब्दील नहीं कर सकती हो। ये कोई बर्बादी नहीं है, बल्कि तुम्हारी किस्मत का वो फैसला है जो मैं बहुत देर पहले कर चुका हूँ और अपनी ज़िंदगी की हसीन यादों में लिख चुका हूँ। अब बस तुम मेरे शहज़ादे की परवरिश करो,
जो तुम्हारे पेट में पल रहा है। और अब हम जानते हैं कि जवार शाह से बगावत की सजा क्या होती है। उसने आयशा का झटके से हाथ छोड़ा और पीछे टेक लगाकर बैठ गया, जबकि आयशा बेयकीनी और कुर्ब के आलम में शीशे से बाहर देखती जा रही थी, जहां उसकी पुरानी जिंदगी के तमाम निशानात तेजी से धुंधला रहे थे। 15 साल जवार शाह के पीछे उसकी बस्ती और जिंदगी दोनों चल रही थी। हवेली के दरो दीवार और उड़ते शोले आसमान को छू रहे थे, और अपनों के खून की बू फिजा में जहर की तरह रची हुई थी। वो लड़का जिसके पैरों तले कल तक मखमली कालीन होते थे, आज नंगे पांव खारदार झाड़ी और नुकीले पत्थरों पर भाग रहा था, जबकि पीछे से आने वाली गोलियों की आवाजें उसकी समातों को फाड़ रही थी। उसकी कमीज खून और मट्टी सटी हुई थी, सीने में सांसें किसी जख्मी परिंदे की तरह उखड़ रही थी, मगर रुकना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। उसने भागते हुए एक आखिरी बार मुड़कर अपने चलते हुए घर को देखा, जहां उसके बाप की लाश बेगौरो कफन पड़ी थी, और माँ की आखिरी पुकार अभी भी उसके कानों में हथौड़ों की तरह बज गई थी। इस वक्त उसकी मासूम आंखों में आंसू नहीं, बल्कि वो तपती हुई आग उतर आई थी, जिसने बरसों बाद एक पूरे शहर को अपनी लपेट में लेना था। माँ की इन तल्ख यादों ने हाल पे सुल्तान की आंखों को हल्का सा नम कर दिया था, मगर अगले लम्हे से पलकें झपका कर इन यादों को कहीं गहराई में दफन किया, और अपने बराबर में बैठी लरसती हुई बतूल की तरफ देखकर एक पुरस्रार सी मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाए गाड़ी अब एक निहायत वसी और फार्म हाउस के आने दरवाजे को पार कर रही, जहां हर तरफ मुहाफिजों का पहरा था। जवार शाह ने गाड़ी रोकने पर निहायत सुकून ने उससे जताया कि तुम्हारी नई दुनिया आयशा ये है, और यहाँ तुम्हारी जरूरत और आराम की हर चीज मौजूद है। तो अब तुम्हें किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयशा ने भीगी आंखों और लरसती आवाज में उसकी तरफ देखा और बड़ी हिम्मत जमा करके बोली, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती हूँ। मेरा कॉलेज और मेरा मुस्तकबिल सब अधूरा रह जाएगा। खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, मैं वापस जाना चाहती हूँ। जवार शाह के चेहरे पर एक सर्द धाकमियत उभरी, और उसने आयशा के करीब झुककर निहायत सफाकी से उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तुम्हें किसी कॉलेज जाने में पढ़ाई की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद है, और एक ही फर्ज है, तुम बस यहाँ रहोगी और मेरे बच्चे को पालोगी। उसके अलावा तुम्हारा इस दुनिया में अब किसी और ख्वाब की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके लहजे की काट आयशा के दिल के पार हो गई, जबकि जवार शाह ने उसे वहीं बेबस छोड़कर गाड़ी का दरवाजा खोलने का इशारा किया। फार्म हाउस के आलीशान मगर हबस ज़दा कमरे में आयशा खुद को किसी पिंजरे में कैद परिंदे की तरह महसूस कर रही थी, जहां दीवारों पर लगी कीमती पेंटिंग्स भी उसे अपनी बेबसी का मजाक उड़ाती लगती थी। रात की तारीखी गहरी होती कमरे का सकूत उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था, और खिड़की से बाहर पहरा देते मुहाफिजों का साया उसे जीने की हर उम्मीद से दूर ले जा रहा था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाजा एक झटके से खुला, और सवार शाह के कदमों की चाप उसने साकित कर दिया था। वो निहायत इत्मीनान से चलता हुआ उसके मुकाबिल आया, और उसके चेहरे पर फैली वहशत को देखकर तंजिया लहजे में बोला, ये कमरा अब तुम्हारी नई हकीकत है। आयशा, यहाँ से भागने का ख्याल भी अपने ज़हन से निकाल दो, क्योंकि अब तुम्हारे कदमों की ज़ंजीर वो बच्चा है जो मेरे नाम की बका बनेगा। आयशा ने दीवार से लगकर खुद को समेटते हुए आखिरी बार मिन्नत की, आप इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं? आपको मुझ पर जरा भी रहम नहीं आता। सवार शाह ने उसकी ठोड़ी को सख्ती से पकड़कर अपना चेहरा उसके करीब किया और सर्द आवाज में उसके कान में सरगोशी की, रहम उस दिन मर गया था जब मैंने अपने बाप की लाश को जलते देखा था। अब इस हवेली में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, और तुम्हारा काम सिर्फ अतात करना है। अब जाओ और आराम करो, क्योंकि कल से तुम्हारी नई जिंदगी का बाकायदा आगाज होने वाला है, जहाँ न कोई मासी होगा और ना ही तुम्हारी मर्जी। वो उसे वहीं छोड़कर समंदर में छोड़कर बाहर निकल गया था, जबकि आयशा फर्श पर ढेर होकर अपनी तकदीर पर रोने लगी, जहां अब सिर्फ अंधेरा और सवारशा की हाकमियत बाकी थी।
अगली सुबह भी सूरज की पहली किरण ने कमरे को छुआ ही था कि एक बूढ़ी मुलाजिमा नाश्ते की ट्रे लिए कमरे में दाखिल हुई और खामोशी से उसे मेज पर रखकर आयशा को देखने लगी, जिसकी आंखें रात भर रोने से सूजी हुई थीं। आयशा ने लरजती आवाज में पूछा कि क्या उससे कभी यहाँ से जाने की इजाजत मिलेगी, तो इस बूढ़ी औरत ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, बेटी, इस दहलीज के अंदर आने का रास्ता तो सबको मालूम है, मगर जाने का रास्ता सिर्फ सवार शाह को मालूम होता है। तुम्हें अपना अब बहुत ख्याल रखना है। तुम इस घर की बहू और इस घराने की वारिस की माँ बनने वाली हो। ये सुनना था कि आयशा के पैरों तले से जमीन निकल गई और उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक कैदी की जिंदगी नहीं गुजारेगी, बल्कि वो एक मोहरे के तौर पर भी इस्तेमाल होगी, जिसकी अब अपनी कोई पहचान नहीं होगी। इसी लम्हे सवारशा कमरे में दाखिल हुआ। इस बार उसके हाथ में कुछ कागजात थे, जिन्हें उसने मेज पर पटकते हुए सर्द लहजे में कहा, ये कागजात हमारे निकाह के हैं। आयशा, दुनिया की नज़र में तुम मेरी मनकूहा हो और कानूनी तौर पर यह बच्चा जो तुम्हारी कोख में पल रहा है मेरा है और उस पर सिर्फ मेरा हक है। इसलिए इस हकीकत को अब तुम जितना जल्दी हो सके कबूल कर लो, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आयशा ने हैरत और बेचैनी से उन कागजात को देखा, जिस पर उसके ही फर्जी दस्तखत मौजूद थे। उसे लगा एक और कारी ज़र्ब उसकी रूह पर लगी है। हो सकता है कुछ कहने ही वाली थी कि सवार शाह की आंखों की तपिश ने उसे वहीं खामोश कर दिया। सवार शाह का लम्स आयशा के वजूद में एक अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रहा था। वो जितना खुद को जवार शाह से दूर करने की कोशिश करती, वो उतना ही जवार शाह उसे अपने हसार में तंग करता जाता। उसकी गिरफ्त में हाकमियत के साथ साथ अब एक बेबाक जुनून भी शामिल था। कमरे की मध्यम रोशनी में जवार शाह का चेहरा आयशा के बिल्कुल करीब था, इतना करीब कि सांसें एक दूसरे में पेवस्त हो रही थी और आयशा की पलकें लरजते हुए बार बार झुक रही थी। जवार शाह ने एक बार फिर अपना हाथ निहायत नरमी मगर हक जताते हुए आयशा के पेट पर रखा और झुककर वहां अपने लब रख दिए। उसके गर्म लम्स आयशा के अंदर एक अर्दाश सा पैदा कर दिया था और उसने भी सवार शाह के कंधों को मजबूती से थाम लिया था, जैसे वो खुद को गिरने से बचा रही हो। आयश जवार शाह ने अपना सर उठाया और आयशा की मखमली रंगीन लबों पर फैली सुर्खी को देखकर उसके लबों के करीब सरगोशी की। तुम्हारा ये झिझकना मेरे सब्र का इम्तिहान लेता है। आयशा, तुम जानती हो कि मैं जो चाहूँ वो छीन लेने का आदी हूँ, मगर तुम्हारे मामले में चाहता हूँ कि तुम खुद को मेरे हवाले कर दो। आयशा ने शर्म से अपने लबों के साथ नजरें चुराईं, मगर जवार शाह ने उसकी ठोड़ी पकड़कर उससे दोबारा अपनी आंखों के सहर में जकड़ लिया और एक बार फिर झुककर उसके पेट को निहायत प्यार से चूमा, जिसका ये अंदाज इतना बोल्ड और वालेहाना था कि आयशा का डर सीने में हथौड़े की तरह बजने लगा। वो बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन जवार शाह के बाजू ने उसे किसी कीमती दौलत की तरह अपने घेरे में ले रखा था। उसके बालों की लटों को अपनी उंगलियों में पदेड़ते हुए उसके कान की लू के पास बोला, इस बच्चे ने तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए जोड़ दिया है। अब तुम चाह के भी मुझसे दूर नहीं जा सकती कि तुम्हारे जिस्म का जर्रा जर्रा अब मेरी हाकियत हो चुका है। आयशा को ऐसे लगा जैसे उसकी हिम्मत जवाब दे रही है और जवार शाह की गुर्बत उसकी नफरत को पिघलाकर किसी नामालूम जज्बे में बदल रही है। जवार शाह ने उसके माथे पर एक तवील बोसा दिया और फिर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे अपनी आगोश में ऐसे समेटा जैसे दुनिया और माफिया की तमाम तकलीफों से उसे महफूज कर लेना चाहता हो। रोमांस का अभी वो खूबसूरत शहर अभी पूरी तरह टूटा भी ना था कि फार्म हाउस की खामोशी अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की खौफनाक आवाज से लरज उठी। जवार, जो भी आयशा की आगोश में सुकून तलाश कर रहा था, एक झटके से सीधा हुआ और उसकी आंखों में नरमी की जगह वही पुरानी सफाकियत लौट आई थी। उसने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर आयशा को बाजू से पकड़कर बेड के नीचे धक्का दे दिया और खुद गन तान कर दरवाजे की तरफ बढ़ा, जहां बाहर से चीखों पुकार और भाग दौड़ की आवाजें आ रही थी। जवाहर का चेहरा गुस्से से तिलमिला रहा था और वो भपड़े हुए शेर की तरह था। कौन है ये बदबख्त जो मेरी हद में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे गार्ड्स कहाँ मर गए हैं?
मैं इन सब की खाल खींच लूँगा, अगर मेरे वारिस और उसकी माँ को ज़रा सी भी खराश भी आई हो तो। आयशा जो बेड के नीचे छुपी कांप रही थी, गोलियों की आवाज़ें सुनकर उसके दिल में जीने की नहीं, बल्कि मरने की एक अजीब सी ख्वाहिशात ने जन्म लिया। उसने सोचा कि शायद यही वो मौका है, जब वो इस कैदो ज़वार से, हाकमियत से हमेशा के लिए आज़ाद हो सकती है। अगर उसे गोली लग जाएगी तो ये रोज़-रोज़ का डर और ज़हनी कुर्ब खत्म हो जाएगा। वह आहिस्ता से बेड के नीचे से बाहर निकलने लगी और खिड़की के पास जाकर खड़ी होगी, जहाँ से गोलियां बरस रही थीं। उसका इरादा था कि वो खुद को इन गोलियों के सामने पेश कर दे, मगर सवार के उकाबी नस्रों ने उसे देख लिया। सवार जो दुश्मनों का मुकाबला कर रहा था। जैसे उसने आयशा को खिड़की की तरफ बढ़ते देखा, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी तरफ चलता हुआ भागा और उसे जोर से फर्श पर गिराकर अपने आप को इन गोलियों के सामने कर दिया। एक तेज रफ्तार गोली उसके बाजुओं को छूती हुई गुजरती और पीछे दीवार में जा लगी। सावियार जख्मी बाजू के बावजूद उसको सबसे बचा लिया था और उसकी आंखों में वहशत और गुस्से के तूफान बर्पा होने लगे थे। आयशा, तुम मरना चाहती हो? मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरी और सिर्फ मेरी हो। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। गार्ड्स ने हमला आवरों को पसपा कर दिया और फिजा में अब से बारूद की आलूदगी शामिल हो गई थी, मगर जावियार का गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने आयशा को उठाकर बेड पर बिठाया और खुद जख्मी बाजू को थामकर गार्ड्स पर बरस पड़ा कि तुम सबको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी गफलत की वजह से मेरी बीवी और बच्चे की जान खतरे में पड़ गई। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे। आयशा फटी फटी आंखों से जावियार के सलूक को देख रही थी, जिसने अभी चंद लम्हे पहले उसे गोलियों की बौछार में ढाल बनाकर बचाया था। उसके दिल में अभी मोहब्बत तो नहीं जाती नजर, सवार की दीवानगी थी और बेखौफी नहीं जिसे बुरी तरह मुतासिर कर दिया था। वो सोच रही थी कि एक इंसान इतना संगदिल होकर भी किसी की हिफाजत के लिए अपनी जान हथेली पर कैसे रख सकता है। जावियार ने झटके से मुड़कर आयशा को देखा और उसके करीब आकर उसके चेहरे को दोनों हाथों के प्यालों में भर लिया। उसकी आंखों में अभी भी वही फिक्र थी जो आयशा ने पहले कभी किसी को अपने दिल में नहीं देखी थी। तुम ठीक तो हो ना आयशा? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? सावियार की आवाज में गुस्से की जगह एक अजीब सी लर्जिश थी। आयशा खामोशी से उसे देखा और उसके जख्मी बाजू की तरफ इशारा किया, जहां से खून तेजी से रिस रहा था। जावियार शाह ने उसे नजरअंदाज करते हुए हुक्म दिया कि तुम यहीं रहोगी और बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करोगी। आयशा के जहन में वो मंजर बार बार घूम रहा था, जब जावियार ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे खिड़की से दूर धकेला था। उसे एहसास हुआ कि जावियार जितना भी बुरा सही, लेकिन उसकी हिफाजत के मामले में वो दुनिया का सबसे मजबूत इंसान साबित हुआ था। उसके दिल में जावियार किस कदर मर्दाना शख्सियत और जुर्रत के लिए अनजाना से एहतराम और तासुर पैदा हो रहा था, जो उसे एक नए शहर में जकड़ रहा था। फार्म हाउस के बड़े हाल में अफरा तफरी मची हुई थी, जब जावियार का खास डॉक्टर अपने मेडिकल बैग के साथ तेजी से दाखिल हुआ। जावियार अभी सोफे पर बैठा अपने बहते हुए खून की परवाह किए बगैर गार्ड्स को कड़ी नजर से देख रहा था, जैसे वो अपनी गफलत पर इन सब का खात्मा कर देगा। डॉक्टर ने करीब आते जावियार के बाजुओं का मायना करना चाहा, मगर जावियार ने अपना हाथ उठाकर उसे सख्ती से रोका और बेड की तरफ इशारा किया, जहां आयशा खामोशी से बैठी सारी सूरत हाल को देख रही थी। जावियार की आवाज में खास हाकमियत मौजूद थी, जब वो डॉक्टर की तरफ देखकर कहने लगा, डॉक्टर, पहले मेरी बीवी आयशा का मुआयना करे, वो ठीक है। मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ ना? मेरी फिक्र ना करें, उसकी सलामती मेरी पहली तरजीह है। फिर मैं खुद को चेक करवाऊंगा। आयशा ये सब देखकर हैरान होगी। वो उसके बाजू से मुसलसल खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उसे अपनी बीवी और बच्चे की ही फिक्र थी। लेकिन आयशा को इस बात का दुख था। उसने एक फर्जी रिश्ते को डॉक्टर के सामने हकीकत बनाकर पेश कर दिया था। आयशा को डॉक्टर ने हैरत से देखा, लेकिन जावियार के जाहो जलाल के सामने डॉक्टर भी खामोश रहा और वो खामोशी से आयशा का चेकअप करने लगा, जबकि आयशा का दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था और वह सोच रही थी कि जावियार उसे किस गहरी दलदल में धकेल चुका है।
जहाँ से निकलने का कोई रास्ता बाकी नहीं। सिर्फ डॉक्टर ने तसल्ली कर ली कि आयशा और बच्चा दोनों मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, तो जावियार ने गहरा और इत्मीनान भरा सांस लिया और फिर अपना जख्मी बाजू डॉक्टर के सामने फैला दिया। मरहम पट्टी के दौरान उसके माथे पर एक शिकन तक न आई, जैसे उसे दर्द का एहसास ही न हो रहा हो, मगर उसकी तीखी नज़र मुसलसल आयशा पर जमी थी। अब भी उसके बोलेगी अल्फाज के ज़हर असर हैरान परेशान खड़ी थी। सावियार ने डॉक्टर को रुखसत करने के बाद आयशा के करीब उसके लरसते हाथों को थामा और निहायत सुकून से बोला, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है आयशा। दुनिया की नज़र में तुम जावियार की इज्जत और उसकी मनकूहा ही हो, और आज से इस घर का फर्द पर तुम्हें इस नज़र से देखेगा। अब इस सच्चाई को अपने अंदर उतार लो, क्योंकि यही तुम्हारा मुकद्दर है और यही तुम्हारी सच्चाई। आयशा कुछ कहना चाहती थी, मगर जावियार की आंखों में छुपी उस गहरी अपनायत और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास ने उसे दोबारा खामोश होने पर मजबूर कर दिया। इस कैद के बाद उसे पहली बार ये एहसास हो रहा था कि ज़ावियार उसे कैद नहीं करना चाहता, बल्कि वो उसे अपनी काली दुनिया का सबसे मोतबर हिस्सा बना चुका है। ज़ावियार की काली गाड़ियों का काफ़िला जब आयशा के बाप की हवेली के सामने रुका, तो फ़िज़ा में कुछ अजीब सी संगीनी और मौत जैसी खामोशी छा गई थी। वही हवेली जहाँ बरसों पहले ज़ावियार के अपनों का लहू बहाया गया था, आज उसके बूटों की दमक लरस रही थी वहाँ पर। साव्यान ने गाड़ी से उतरकर निहायत सुकून से आयशा का हाथ थामा और उसे अपने साथ खींचते हुए हवेली के मरकजी हाल में दाखिल हुआ, जहां सामने आयशा का बाप चौधरी हशमत अपने गुस्से और तकब्बुर के साथ खड़ा था। मगर जैसे ही उसकी नज़र साव्यार के पीछे खड़ी अपनी बेटी आयशा पर पड़ी, तो उसके हाथ से सिगार गिर गया और चेहरे की रंगत लम्हों में फक हो गई थी। हशमत के कदमों तले से जैसे जमीन निकल गई। वो हक जताते हुए बोला, साव्यार तुम तो मर चुके थे। उस दिन आग में कोई नहीं बचा था। साव्यार ने एक जहरीली और फातिहाना मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई और आयशा के गिर्द अपना बाजू फैलाकर उसे अपनी वजूद के करीब कर लिया। उसकी आंखों में बिरसों की तड़प की जीत का नशा साफ झलक रहा था। हशमत की नजरें जब अपनी बेटी के सर्द चेहरे और उसकी बदलती हुई हालत पर पड़ी, तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो धाड़ा कि क्या तमाशा है साव्यार, मेरी बेटी तुम्हारे साथ क्या कर रही है और इस हाल में यहाँ लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। साव्यार एक जोरदार कहका लगाया, जो हवेली के दरो दीवार से टकराकर वापस आया था, और फिर नहायत सर्द लहजे में चौधरी हशमत की आंखों में आंखें डालकर बोला, हैरत हो रही है ना चौधरी साहब, जब नस्ल को आप मिटाने की कसम खाई थी, आज वही खून आपकी बेटी की कोख में पल रहा है। जी हाँ, आपका नवासा और मेरी काली सल्तनत का इकलौता वारिस बहुत जल्द इस दुनिया में कदम रखने वाला है। ये सुनते जैसे हशमत पर सख्ता तारी हो गया था, उसका चेहरा गुस्से और कुर्ब से काला पड़ गया और वो तड़प कर अपनी बेटी की तरफ बढ़ा, मगर साव्यार के मुसल्ला गार्ड्स ने उसे वहीं जकड़ लिया। आयशा की माँ ने धाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया और वो बेबसी से अपनी बेटी को देख रही थी, जो किसी जिंदा लाश की तरह साकित खड़ी ये सब देख रही थी। हशमत की आंखों में खून उतर आया था। वो बेबसी से हाथ पैर मार रहा था, मगर साव्यार ने उसके करीब झुककर निहायत धीमी और जहरीली आवाज में जताया, जैसे तुमने मेरे बाप के सीने में गोलियां उतारी थी, उस दिन तुमने उस इंसान को ही नहीं मारा था, बल्कि अपने मुस्तकबिल भी मार दिया था। अब देखोगे तुम्हारी अपनी बेटी मेरा निशान बनकर मुझे खराश भी आई, तो तुम्हारी बेटी और ये बच्चा कभी जिंदा नहीं बचेगा। आयशा के बाप की वो बेबसी का वो टूटा हुआ तकब्बुर और उसकी आंखों में तड़पता हुआ गुस्सा देखकर आयशा के इंतकाम को वो तस्कीन मिली थी। वो बगैर किसी का एहसास किए उसे आयशा के माथे पर सबके सामने तवील बोसा दे दिया था, जिससे वो हशमत के जख्मों पर नमक छिड़क रहा हो, और फिर उसे सुलगता छोड़कर फातिहाना अंदाज में मुड़ गया। हवेली के दरो दीवार आज बरसों पुराने इस लहू का हिसाब चुकता कर होते देख रहे थे। आयशा जबकि अपने ही घर में अजनबी और गुनहगार की तरह खड़े अपने माँ बाप की नफरत और बेबसी का निशाना बन रही थी। साव्यार के जाते हवेली का वही हाल, जहाँ कभी आयशा की हंसी गूंजती थी, अब एक दम घुटते हुए मातम में बदल चुका था, और चौधरी हशमत की आंखों में बरसती हुई दहशत
अब एक खौफनाक नफरत की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी, जिसने लरजते कदमों से आयशा की तरफ बढ़कर उसका जबड़ा अपनी सख्त उंगलियों की तरफ ले लिया था और उसके चेहरे को झटका देकर धाड़ा, मालून जावियार के साथ तुझे जमीन नहीं निकल देती। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है बाबा, मैं बेगुनाह हूँ। सावियार ने खुद मुझे अगवा किया था, मेरा यकीन करें। वो धाड़े मार कर रो रही थी और अपनी बेगुनाही का सबूत दिलवा रही थी। वो अपने बाप के पैरों में गिर गई, मगर उसके बाप ने उसे नफरत से ठोकर मारकर पीछे धकेल दिया। उसका गुस्सा बेकाबू हो रहा था। आशा के बाप को अब खुद से घिन आ रही थी और सिसकियां अपना सीना पीट रही थी। दुख से उनकी बेटी उनके गुनाहों की भेंट चढ़ चुकी थी, जिसके बाप का सीना खुद ने छलनी किया था। गोलियों से आज वही हमारी इज्जत उछाल गया है। आयशा के बाप ने अपनी दीवार पर लगी बंदूक को उतारा और आयशा पर तान लिया और चिल्लाया, मैं अभी तुझे और इस गुनाह की पोटली को अपने हाथों से जमीन में गाड़ दूंगा। कभी इस गुनाह को अपनी नस्ल का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। चौधरी गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन आयशा की माँ गुस्से से चिल्ला उठी और अपने शोहर के पैरों में गिर गई। मेहरबानी करके चौधरी साहब मेरी बेटी को मत मारें। एन उसी लम्हे जावियार के गार्ड्स जो बाहर हवेली के खड़े थे, उनकी गोलियों की थरथराहट बाहर से सुनाई देने लगी। तभी चौधरी हशमत के हाथ वहीं कांपते हुए रुक गए, क्योंकि जावियार कह कर गया था, अगर उसकी बीवी और बच्चे को कुछ भी हुआ तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके लिए वही उसके हाथ थम गए थे। उसकी माँ ने उसका बचाने के लिए दुहाई तो दी थी, मगर उसने आयशा से कहा था, यहाँ से चली जाओ, इस घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। आयशा को ऐन उसी वक्त एहसास हुआ कि अब इस घर में और इस दुनिया में उसकी कोई भी जगह बाकी नहीं रही। अब अगर उसे जिंदा रहना है तो सिर्फ सावेयार शाह के घर ही वो जिंदा रह सकती है और अपनी बाकी की जिंदगी गुजार सकती है, क्योंकि वो सिर्फ जावेयार शाह के दुश्मन के इंतकाम का एक मोहरा बन चुकी है। उसके अलावा अब उसका कोई रद्द अमल नहीं है। वो ये सोचती हुई हिचकियों से रोने लगी, मगर उसके माँ बाप को उसकी किसी बात पर कोई यकीन नहीं था। उसकी जान तो बख्श दी गई थी, मगर उसको उसके माँ बाप ने सीने से नहीं लगाया था। वो उनके प्यार और उनके लम्स के लिए तड़प रही थी, मगर वो खानदानी दुश्मनी की भीड़ चढ़ चुकी थी। उसके वजूद में पलने वाला बच्चा भी उसके लिए मददगार साबित न हो सका। किसी का दिल न पिघल सका कि उस बेगुनाह की बात पर एक बार यकीन करके तो देखे। दूसरी तरफ जब जावियार शाह चौधरी हशमत की हवेली से निकला था, तो सीधा एक उजाड़ और बेआबान कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया था। वो एक पुरानी कब्र के पास जाकर रुका और हाथ उठाकर सबसे पहले उसने दुआ की। दुआए मगफिरत के बाद वो अपने वालिद से मुखातिब हुआ और कहने लगा, अब्बा जी, मैंने आपके लहू का आज बदला ले लिया है। मैंने चौधरी हशमत को वो सजा दी है जिसकी तड़प कब्र तक भी खत्म नहीं हो सकती। मैंने उसकी ही बेटी को मोहरा बनाकर अपने दुश्मनी का, अपने वालिद के खून का बदला ले लिया है। मैंने आपकी रूह को तस्कीन पहुंचाने के लिए ये सब किया है। मैं अपने वालिद के लोगों का बदला हर हाल में लूंगा। ये मेरा उस दिन से खुद से वादा था जिस दिन मैंने चौधरी हशमत को आपके सीने में गोलियां उतारते हुए देखा था। तब से इस दुश्मनी की, इस नफरत की आग मेरे दिल में जल रही थी, जिसे आज मैंने काफी हद तक बुझाने में खुद को कामयाब किया है। फिर सावेयार अपनी माँ की कब्र पर गया। उनके माँ बाप की कब्र बिल्कुल साथ साथ थी। अपनी माँ की कब्र पर भी जाकर उसने यही अल्फाज दोहराए, माँ आज तुम्हारी बहू की कोख में चौधरी हशमत की नस्ल पल रही है। मैंने अपना वो बदला पूरा किया जो उसने मेरी माँ बाप को बेगुनाही की सजा दी और मुझसे छीन लिया। आज उसी जगह पर चौधरी हशमत की नस्ल पल रही है। जिस हवेली से उसने आपको निकाला था, वो इस वक्त तड़प रहा है। वो मेरी नस्ल को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इसी हवेली में उसी की ही बेटी से उस बच्चे की पैदाइश करवाऊंगा और उसको जीते जी मार डालूंगा। वो सावियार को कभी इन गलियों में बेसहारा भागता देखा था, अब एक ताकतवर इंसान बन चुका था। वह कब्रिस्तान से निकला और वापस चौधरी हशमत की हवेली में दाखिल हो गया, जहां पर चौधरी हशमत अपने वफादारों के साथ सर जोड़े अपनी नाकामी की मातम कर बना रहा था। उसके बूटों की दमक जब इस हवेली के अंदर दाखिल हुई, तो चौधरी हशमत के किसी भी गार्ड में इतनी हिम्मत न थी कि वो सावियार को रोक सकते। वो सीधा हवेली के सहन में दाखिल हुआ और चौधरी हशमत उसको देखकर गुस्से से एक बार फिर तिलमिला उठा।
سب کے سامنے زاویار نے چودھری حشمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا سامنا کیا، اور اس نے سب کے سامنے ایک بار راز فاش کرنے کا اعلان کیا کہ جس نے حویلی کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ اس نے تیکھے لہجے میں کہا کہ وہی زاویار ہے جسے تم نے بچپن میں ایک سلگتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک تسبیح نکالی تھی جو اس کی ماں کی نشانی تھی، اور اس کی قبر کے کنبے پر رکھ کر خود سے وعدہ کیا تھا جب تک وہ حشمت کی نسل کو اپنے پاؤں کے نیچے نہیں کچل دیتا تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکے گا۔ اس نے چودھری حشمت کے گھر میں کھڑے ہو کر اسی کو للکارا تھا، تمہیں کیا لگتا ہے چودھری صاحب کہ قدرت اتنی ناانصاف ہے کہ اس نے مجھے تمہاری خاطر زندہ رکھا تاکہ میں زندہ رہ کر تم جیسے درندے سے اپنا بدلہ لے سکوں، اپنے بے گناہ ماں باپ کا بدلہ لے سکوں اور ان کی روح کو اپنے بے گناہ ماں باپ کا بدلہ لے سکوں اور ان کی روح کو سکون پہنچا سکوں۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ میرا ایسا رشتہ ہے جس کی بربادی اور جس کی آبادی اب صرف میرے ہاتھ میں ہے۔ تم بہت کوشش کر رہے تھے اس حقیقت کو چھپانے کی، مگر میں سب کو یہ حقیقت بتا کر رہوں گا کہ تم کس قدر گھٹیا انسان ہو۔ تم نے کس طرح دو بے گناہوں کو موت کے گھاٹ میں اتار دیا تھا اور ایک بے بس بچے کو گلیوں میں آوارہ اور سسکتا ہوا چھوڑ دیا تھا۔ چودھری حشمت اپنی عزت بچانے کی خاطر اپنے سب رشتہ داروں کے سامنے، اور جب خیر خواہ وہاں پر بیٹھے تھے، ان کے سامنے سلطان کو جن کروانے کے لیے اسے اپنی دامن کی طور پر قبول کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ زاویار اس کے ایک پرانے دوست کا بیٹا تھا جسے حشمت نے اب دشمنی خود موت دی تھی۔ زاویار کے والدین نے چودھری حشمت پر بہت اعتبار کیا تھا، مگر وہ اعتبار کے قابل نہ رہے۔ چودھری حشمت نے زاویار کے والدین کو موت کے گھاٹ اتار کر اسے تنہا آگ کے حوالے کر دیا تھا، لیکن اب سایہ اس کی بیٹی سے شادی کر کے اس کی خوف نہیں اپنی نسل پیدا کر رہا تھا۔ کچھ رات سب کے سامنے زاویار چھپ کر تو گیا تھا، اور یہ بھی اس کی بہت بڑی جیت تھی کہ وہ سکون سے اپنے دشمن کے گھر پر آرام سے لیٹا تھا۔ دوسری طرف چودھری حشمت بالکل بے بس انسان بن چکا تھا۔ اس نے اب سب نوکروں کو کہہ دیا تھا کہ زاویار کی کوئی بھی بات کوئی بھی نوکر نہیں ٹالے گا، وہ جس طرح کہے گا سب ویسا ہی کریں گے۔ اور جو اسی طرف عائشہ اس تنہائی میں سوچ رہی تھی کہ جس کو وہ دشمن سمجھ رہی تھی وہ دشمن نہیں، اس کا اغوا کار بھی نہیں تھا، اب ہونے والا اس کے بچے کا باپ تھا اور اس کے خاندان کو باقاعدہ حصہ بن چکا تھا۔ چودھری حشمت نے سب نوکروں کو کہہ دیا تھا کہ وہی اس گھر کا داماد اور اس گھر کا وارث بننے والا ہے۔ چودھری حشمت نے سب ملازموں کو کہہ تو دیا تھا کہ وہ اس گھر کا مالک، اس کی بھی ہر بات مانی جائے، مگر اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ یہ رشتہ دل سے نہیں اپنانا چاہ رہا تھا، اور زاویار نے اسے جیتے جی مار دیا ہے۔ حویلی میں ایک نئے قانون کا نفاذ ہو چکا تھا۔ جہاں کبھی حشمت کا راج تھا، آج سب زاویار کے ڈر سے اس کے آگے پیچھے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ حشمت کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر زاویار کو بہت سکون ملا، اور اس سکون کو مزید بڑھانے کے لیے وہ حویلی کے پچھلے کمرے میں گیا، جو کمرہ بہت چھوٹا تھا، جس میں گھٹن بہت زیادہ تھی، مگر وہاں پر عائشہ موجود تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے کے ساتھ ٹیک لگائے سوچوں میں گم تھی، اور یوں بیٹھی ہوئی تھی جیسے کوئی ہارا ہوا جواری بیٹھا ہوا تھا۔ عائشہ نے اسے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں اب صرف ڈر نہیں تھا، بلکہ اس رشتے کی کرواہٹ اور نفرت بھی موجود تھی، جو اس نے سچائی کو جاننے کے بعد اپنے دل میں مزید زاویار کے بارے میں نفرت رکھ لی تھی، کیونکہ اس کی سچائی اب سب کے سامنے آ چکی تھی۔ زاویار نے تیزی سے دروازہ بند کیا اور اس کے باریک قدموں کی آواز عائشہ کے کانوں میں سنائی دینے لگی، اور وہ دھیرے دھیرے عائشہ کے بالکل قریب بیڈ پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ زاویار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی، اور اس کے سر پر جنون سوار تھا۔ اب وہ کوئی اغوا کار تھوڑی تھا جو یوں چھپ چھپ کر ملتا، اب تو وہ اس حویلی کا باقاعدہ داماد بن چکا تھا اور عائشہ کا مجازی خدا تھا۔ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، مگر اب حقیقت یہی تھی۔ عائشہ اسے دل سے قبول تو نہیں کر پا رہی تھی، جس نے اس کی عزت خاک میں ملا دی۔ اب اس کے باپ کی نظروں میں اس کو یہ گرا دیا تھا، اور اس کی ماں جیتے جی مر گئی تھی۔ زاویار نے اسے اپنی فولادی بازوں میں جکڑ کر اپنے حصار میں لینا چاہا، مگر عائشہ نے پوری قوت کے ساتھ اپنے دونوں بازو اس کے کندھوں پر رکھ کر اسے پیچھے کو دھکیلا، مگر وہ ایک بھرپور نوجوان مرد تھا۔ اس نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اسے خود سے دور نہیں ہونے دیا،
और आज उसके जुनून में पहले से ज़्यादा मजबूती थी, जिससे वो इस गुर्बत के ज़रिए हशमत के पूरे ख़ानदान को अपनी ताकत और अपने जाहो जलाल का एहसास दिलाना चाहता था। साव्यार ने अपना चेहरा आयशा के कान के करीब झुकाया और उसकी गर्म सांसें आयशा की गर्दन पर ताज़ियाने की तरह लगने लगी थी। आयशा, तुम चाहकर भी मुझे खुद से दूर नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे बाप ने सबके सामने मुझे अपना दामाद कबूल किया है और अपनी बेटी का ये वजूद मेरे हवाले किया है। जावियार ये कहता हुआ बड़ी ही बेबाकी से उसके लबों के करीब झुक गया। उसका ये जुनूनी अंदाज आयशा के पूरे वजूद में एक अर्ताश सा पैदा कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी कि अब कोई इस शख्स के रहमो करम पर अपनी जिंदगी गुजारेगी जिसने उसके बाद का गुरूर खाक में मिला दिया था। साव्यार ने एक बार फिर उसके पेट पर हाथ रखा, जहां उसका वारिस पल रहा था, और इस बार उसका लम्स पहले से कहीं ज्यादा गहरा और हक जताने वाला था। उसने आयशा को अपने बाजों में उठाकर बिस्तर पर गिराया और खुद उस पर झुकते हुए जताया कि ये रात उसके इंतकाम की मेराज बन जाएगी, जहां वो अपने दुश्मन की बेटी को अपनी मोहब्बत और शिद्दत के हसार में कैद कर चुका होगा। आयशा उसका ये जुनूनी अंदाज देखकर सोचने लगी थी कि ये साबियार का इंतकाम सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि उसकी रूह को मुसख्खर करने की एक जुनूनी कोशिश भी है, जिसके सामने उसकी तमाम तर वजाहत दम तोड़ चुकी थी। कमरे की मध्यम रोशनी में साव्यार का वजूद किसी दियो शिकारी की तरह लग रहा था, जिसने अपने शिकार को मुकम्मल तौर पर अपना बना लिया था। अगली सुबह हवेली में अभी साव्यार की मोहब्बत की खुशबू महक रही थी। अभी आयशा उसके हसार में लेटी थी। वो भी ठीक से नींद से नहीं जागे थे कि उसके मोबाइल फोन पर एक जरूरी कॉल आ गई थी। उसने फौरन अपने गार्ड्स को अलर्ट जारी कर दिया था, जैसे कोई बहुत बड़ा महाज जारी होने वाला है। वो आयशा के माथे पर एक हक जताने वाला बोसा देखकर उससे कहने लगा, आयशा, मुझे एक बहुत जरूरी काम है और इसी जरूरी काम के सिलसिले में मुझे शहर से बाहर जाना पड़ेगा। मेरे कुछ पुराने हिसाब और दुश्मनों के ठिकाने हैं, जिन्हें अब जड़ से खत्म करना लाजमी है। तुम यहीं रहोगी और याद रखना कि मेरे बच्चे और तुम्हारी हिफाजत के लिए मेरे गार्ड साए की तरह तुम्हारे साथ हैं। किसी की जरूरत नहीं होगी तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखने की भी। बस तुम बहुत ख्याल रखना और मेरा इंतजार करना। साव्यार के जाने के बाद आयशा को हवेली अब सुनसान सी महसूस हो रही थी, क्योंकि आयशा खुद को दीवारों के बीच पहले से ज्यादा तन्हा और अधूरा महसूस करने लगी थी, क्योंकि अब उसे साव्यार की मौजूदगी की आदत होने लगी थी। उसे यूं लग रहा था जैसे दिल के किसी कोने में अब साव्यार ने अपनी जगह बना ली है। आज आपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर से जाने वाली तमाम गाड़ियों को बड़े गौर से देख रही थी। उसका दिल किसी भी चीज में नहीं लग रहा था। वो सोच रही थी कहीं से जावियार की गाड़ी आ जाए और वो उसे एक नजर देख ले, कि उसे जब तुम दोनों छोड़ता मैं आयशा के कमरे का दरवाजा खुला और उसकी माँ इधर उधर देखती हुई कमरे के अंदर दाखिल होगी। वो आयशा के करीब जाकर खड़ी हुई और उसके दोनों बाजुओं को अपने हाथों में लेकर बड़े प्यार से बेड पर बिठाया और एक राजदाराना तरीके से उससे बात करने लगी, बेटी, साव्यार ने जो सच सबके सामने उगल दिया है, उसे इनकार तो नहीं किया जा सकता, मगर उसके अलावा भी एक सच है जो मैं तुम्हें आज बताना चाहती हूँ। जब तुम दोनों छोटे थे तो तुम्हारे वालिद और साव्यार के वालिद ने मिलकर ये फैसला किया था कि तुम दोनों का निकाह बचपन में ही कर दिया जाए, और जब तुम दोनों बालिग होगे तो फिर रुखसती बाकायदा हो जाएगी। इस तरह तुम दोनों का निकाह हमारी रजामंदी से हो गया। इस वक्त साव्यार के वालिदैन के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जमीन की जंग तो बाद में शुरू हुई थी। जब जमीन की जंग शुरू हुई तो तुम्हारे वालिद ने सुल्तान के तमाम खानदान को मट्टी में मिला दिया था। उसके गरूर और अना ने कुछ भी नहीं देखा था। उस मासूम की सिसकियां और आहें आज भी मुझे याद हैं। साव्यार के खानदान पर वाकई ही जुल्म हुआ था, मगर तुम्हारे वालिद ने तमाम निकाह के सबूत मिटा दिए थे, ताकि इस निकाह से छुटकारा हासिल किया जा सके और तुम्हें कभी भी इस निकाह के बारे में मालूम न हो सके। मगर देखो, आज तुम उसी के बच्चे की माँ बनने वाली हो। आयशा ये सुनते ही सकते में चली गई। उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, कि जिसे वो अपने पेट में गुनाह समझ रही थी वो कोई गुनाह नहीं और ना कोई बदनामी है। वो तो बरसों पुरानी एक ऐसी सच्चाई थी जिसे उसके बाप ने अपने ही हाथों से मिटाने की कोशिश की थी। ये सब सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि जावियार तभी उस पर अपना हक जमाता था।
समझता था अपना हक। वो परेशान अब सच्चाई के बोझ तले दब चुकी थी। उसका बाप उसे शराफत के दर्श दिया करता था और उसी ने एक जायज़ रिश्ते को छुपाने के लिए कितना बड़ा ज़ुल्म ढाया था। और अब जब साव्यार वहाँ मौजूद नहीं था, तो उससे पहली बार उसकी कमी की शिद्दत महसूस होने लगी थी। आयशा किसी ज़ख्मी परिंदे की मानित अंदर से तड़प रही थी। वो बोझल कदमों के साथ उठी और अपने वालिद के कमरे की तरफ पलट गई थी। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई। सामने ही उसका बाप बैठा था। हशमत की आंखों में कोई गरूर नहीं था, एक हारे हुए बाप की झलक नजर आ रही थी। बाबा, क्या आपने वाकई ही मेरा निकाह ज़ावियार से बचपन में करवाया था? बाबा, क्या आपने वाकई ही मेरा निकाह ज़ावियार से बचपन में करवाया था? वो अपने वालिद से चीख कर पूछ रही थी। क्या आपने वाकई ही ज़ावियार के खानदान को कत्ल किया था? हशमत सर झुकाए उसकी बात सुन रहा था, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था। आयशा अब भी चीख कर पूछ रही थी, बताए बाबा, मुझे आपसे जवाब चाहिए। हाँ बेटा, जब ज़ावियार के वालिद के साथ मेरे भाइयों जैसे ताल्लुकात थे, तब हमने बाहमी रजामंदी से तुम दोनों का निकाह बचपन में करवाया था। मगर बाद में जायदाद की हवस में मुझे अंधा कर दिया था और मैंने उसके पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दिया था, ताकि सारी जायदाद और सारा इक़्तिदार मुझे हासिल हो सके। मगर मैं गलत था, मैं सब कुछ पाकर भी वही सुकून हासिल न कर सका जो मुझे कभी पहले हुआ करता था। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने बहुत गलत किया था उनके साथ भी और अपनी औलाद के साथ भी। मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, मगर मैं फिर भी हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। हो सके तो अपने इस बाप को माफ़ कर देना जिसने खुद ही अपनी बेटी की ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया। मैंने उसका निकाह के तमाम गवाह और कागज़ात जला दिए थे, ताकि किसी को खबर न हो कि तुम एक दुश्मन की मनकूहा हो। मगर खुदा का इंसाफ देखो। आयशा वहां बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और चौधरी अशमत से कहने लगी कि जिस बच्चे को मैं गुनाह समझ रही थी, वो गुनाह नहीं, आपकी दी हुई अमानत थी। मगर मैं कितनी गलत थी, अपने ही बच्चे को अपने हाथों से खत्म करने का सोच रही थी। उसको गुनाह कहती रही, मगर आपने सिर्फ उस दिन जावियार को यतीम नहीं किया था, बल्कि अपनी बेटी के मुस्तकबिल को भी रुस्वा कर दिया था। बाहर सवार के गार्ड्स आयशा और उसके बच्चे की हिफाजत के लिए मुसलसल एक्टिव खड़े थे और उसे उस चीज़ का एहसास दिला रहे थे कि अब उसकी ज़िंदगी का हर फैसला उस शख्स के हाथ में है जिसे उसके अपने बाप ने यतीम किया था। साव्यार को कई दिन गुजर चुके थे और हवेली की वो सुनसान फिजा आयशा को बोझल कर रही थी। दिन गुजरते गए, मगर साव्यार का कोई अता पता मालूम न हो सका। आयशा बोझल दिल के साथ बहुत सी दुआएं करती कि कहीं से साव्यार वापस लौट आए। तहज्जुद में गिड़गिड़ा कर दुआएं करती और बाहर मेन दरवाजे को ही देखती रहती कि साव्यार की गाड़ी किसी दिन आकर इसके सहन में रुके। फिर एक दिन फिर एक दिन वाकई ही साव्यार की गाड़ी आकर रुकी, तो अब वो साव्यार वापस नहीं लौटा था जो बड़ी शान के साथ हवेली से रुखसत हुआ था। वापसी पर उसके कपड़े जगह जगह से फटे थे और वह झुकता हुआ हवेली के सहन में लेट गया। आयशा दौड़ती हुई उसके करीब गई और उसे अपनी गोद में लिटा लिया। वो जावियार की हालत देखकर परेशान होने लगी। आपकी ये हालत किसने की? आयशा, ये हालत उस दुश्मनी का नतीजा है जो हमारे बड़ों ने उसका बीज बोया था। वो अपनी शर्ट हटाता अपने दिल के करीब बने हुए जख्म को दिखाने लगा जो पूरी तरह उसके जिस्म में सरायत कर चुका था। आयशा, बस तुम मेरे बच्चे को ऐसी दुश्मनी की भेंट दोबारा मत चढ़ने देना और उसे बताना कि उसका बाप कोई कातिल नहीं था, एक अच्छा इंसान था। आप ऐसी बातें ना करें, मुझे तो अभी आपसे माफ़ी मांगनी है। नहीं आयशा, माफ़ मुझे कर देना जिसे मैंने अपना कैदी बना कर रखा। आयशा के आंसू जावियार अपने हाथ आयशा के आंसू अब उसकी आंखों से जावियार के गालों पर गिरने लगे। जावियार अपना हाथ आखिरी बार आयशा के पेट पर फेरता नीचे को ढलक गया और उसका सर आयशा के कंधों पर गिर गया। नहीं जावियार, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन हवेली में आयशा की चीखें गूंजने लगी और फिर से हशमत भी आंखों में आंसू लिए खड़ा था कि उसने खुद ही अपनी बेटी का सहाग उजाड़ दिया था।